Good morning. Good morning. Namaste. Suprabhatam. Let us begin. Okay, शुरू करते हैं. Let us ensure that firstly we sit comfortably and we keep the windows or the doors open for the fresh air inside. Let us start with the practice. दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में रखते हैं. श्वास गहरा भरेंगे. 3 बार ओम का उच्चारण followed by the Gayatri mantra, Mahamrityunjay mantra and the Pratari Shakti mantra. Start करते हैं. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. ॐ. Let us be in this present moment for some time, keeping the eyes closed, fresh positive air, and allowing the vitality of this fresh air to reorient several channels of our mind. गहरा श्वास करेंगे. फिर से गहरा प्रश्वास. Breathing in and breathing out. Let us focus at the eyebrow center point. अपने ध्यान को भ्रू मध्य पर केंद्रित करते हुए अनुभव करें हर श्वास के साथ हमारी इस चेतना शक्ति को हम जागृत कर रहे हैं. Let us allow the consciousness to invoke with every practice of pranayam that we do. Let us breathe thoroughly, breathing out thoroughly, breathing in, holding the breath, breathing out. Let us finally rub both palms together. दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें. And let us placing them over the eyes, open them up to start with the session. Okay,
सो यस, लेट अस बिगिन। ओके, तो जैसे हम हर एक सेशन को कोई स्पेशल सेशन से कोरिलेट करते हैं। So today's technique would be more primarily working upon how we can improve our cognitive level so that हम अपने कोई भी कार्य में बिल्कुल हेडेक के बगैर कर पाए। सो माइग्रेन हो, अर्धशीशी का प्रॉब्लम हो, या फिर नॉर्मल सिंपल हेडेक, whatever it could be. One thing that we need to notice is that when the internal brain neurotransmitters are working in the good condition, when there's not too much of uh, electric signals disruption, we can be in a good state of mind to take good decisions and be in a good peace of mind state. So let us do it and understand how we can make it happen. अगर हम हवन की बात करें तो हवन के लिए स्पेशली मेधा इष्टि आती है, मेधेष्टि जिसको कहते हैं। जिस प्रकार से कफेष्टि है, वातेष्टि, पित्तेष्टि है, उसी प्रकार स्पेशली फॉर द ब्रेन न्यूरोट्रांसमिटर्स मेधेष्टि कम्स। तो उस मेधेष्टि को फिर आपने अपने योगाभ्यास के साथ साथ यूज करना है, जिससे कि उसका जो फ्यूम्स है, उसके जो वेपर्स फॉर्म होंगे, दैट वुड बी एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी and thereby practice of pranayam will be more enhanced. So let us start with the practice which involves the loosening series to start along. दोनों पैरों को जमीन पर रखेंगे. Let us allow both palms to be brought by the sides of the thigh. आंखें बंद करें, कुछ समय को अपने पोजीशन को समस्थिति में अनुभव करेंगे. Let us visualize our body in a normal समस्थिति. श्वास भरेंगे and let us allow both palms to be opened to bring them up in the air, holding the position aligned. Let us ensure we keep the elbows erect and at the same time heels lifted up. Let us hold the position for a while. श्वास भरेंगे, कुछ समय इसी पोजीशन में रहे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly release. फिर से एक बार गहरा सांस भरेंगे. Now this helps to improve our neuromuscular coordination, which thereby is beneficial for improving the balance within the body with respect to the signals and the messages that have been sent from the brain and coordinating it with the locomotory body parts. Exhale, नीचे. जब हम ऊपर ले गए थे, we had felt that there's some stretch being experienced by the sides of the elbow, arms, forearm, fingers, everything, right? तो इस अभ्यास को करते समय यही भाव हो कि हम रोम रोम को उत्तेजित कर रहे हैं. श्वास भरेंगे फिर से एक बार. दृष्टि किसी भी एक पॉइंट पर स्थित, दृष्टि एकाग्रित किसी भी एक पॉइंट पर. Let us ensure we are pressing our metatarsals and we are keeping our elbows in line with the ear. दोनों कोहनियां कान से सटी हुई. कुछ समय रहेंगे इस पोजीशन में. Can I do the counting? Yes, let's do it. 1, एकम, 2, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, and slowly जितनी धीमी गति से हम करेंगे, the slower we do, the better we would be able to experience it happening. That रोम को स्टिमुलेट करने का प्रक्रिया है यह अभ्यास. इस अभ्यास को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. दोनों पैरों में फासला बनाइएगा. कीप अ गैप बिटवीन बोथ द फीट, 2 feet गैप. दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे. Let us interlock the hands. Let the palms be facing above, opening to the sky. Exhale, let's turn to the left. श्वास भरे, गहरा सांस भरेंगे.
and exhale, turn to the other side. इस अभ्यास को करते समय आंखें बंद करेंगे. Let us close the eyes. Breathe in, and while we breathe, let us feel the air coming from the trunk to the rightmost, so the leftmost trunk से rightmost chamber तक आ रहा है, ऐसा अनुभव करना है. और जब हम बाएं करवट लेंगे, from the right, you should be experiencing that stretch towards the left chamber. Okay? Breathe in, exhale. Breathe in, exhale. Breathe in, exhale. Breathe in, exhale. Breathe in करते रहे बिल्कुल तन्मयता के साथ, with full attention towards the changes happening inside, the stretch happening, the movements happening. Okay, continue. Continue. Ten. Continue. इस अभ्यास को करते समय यही भाव हो कि हर एक कोशिका हमारी वेस्ट लाइन की और ट्रंक एरिया की स्ट्रेच हो रही है, रिलैक्स हो रही है, अगेन स्ट्रेच हो रही है. तो एक जगह पे अगर स्ट्रेच है, एलोंगेशन है, तो एक जगह पे कॉम्प्रेशन हो रहा है. So there's one part which is doing the process of agonist and the other one antagonist process. Continue. Fine. Release. Let us go for the next practice where we allow the process of twisting. तो जितना शरीर को हम कसेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे से वहां पे रक्त संचार होता रहेगा. और जितना अच्छा रक्त संचार होगा, it would be beneficial for the body in turn. दोनों हाथों को खोल देंगे. श्वास भरे. Let's turn such that the upper trunk area is twisted and we look to the opposite heel. Okay, अपने opposite heel को हमें देखना है. और इस process के दौरान we have to ensure that we are keeping position of the shoulders being twisted such that it is trying to be as parallel to the, so जैसे मान लो this is the position, but ये जो शोल्डर है इसको हम इस जगह पे ले जाएंगे तो दूसरा यहाँ पे आएगा. तो जितना हो सके ट्राई करना कि आप बिल्कुल अपने पैरों की लाइन में रखें एंड नॉट दिस मच ओनली. ओके, ट्विस्ट. फिर से श्वास भरे. ट्विस्ट. फिर से श्वास भरे. ट्विस्ट. ब्रीद इन. ट्विस्ट. ब्रीद. सो जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं उस दौरान एक्सहेल करें. यस. ब्रीद. पूरक. पूरक माने सांस भरना है. रेचक. पूरक. रेचक. पूरक. रेचक. पूरक. रेचक. पूरक. रेचक. पूरक. रेचक. रिलीज. दोनों पैरों में जो फासला बनाया था उसे अब हमें वापस अपनी पोजीशन में लाना. सो द बोथ फीट विल बी जॉइनिंग टुगेदर. लेट अस ब्रीथ इन एंड वी विल जॉइन बोथ palms एट द हार्ट सेंटर. ओके, आंखें बंद. अपने आंखों को बिल्कुल एकाग्रित करेंगे भ्रूमध्य पर. श्वास गहरा भरेंगे. And let us get ready to do two important practice. That is, one being Hastottanasana and the other one being Padhastasana. Okay, so we are going to repeat this with the process that we are experiencing, that excitation of the internal neurotransmitters while it gets the blood active flowing towards it and while it releases it. So let's take a deep breath in. अनुभव करें कि हमारा शरीर बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है. दोनों हाथों को बाय द साइड्स रखेंगे. ब्रीद इन, लेंथनिंग द स्पाइन. लेट अस एक्सहेल. अच्छा, ध्यान से देखना भले. ओके, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट फर्स्ट. सो व्हाइल आई बेंड, it has to be the cervical, then thoracic, then lumbar, sacral, coccyx area bending.
ओके, तो श्वास भरते हुए हमें एक्सहेल करना है पीछे जाते वक्त। फिर से श्वास भरेंगे जब हम वापसी में आए। And then when we go down, it is this part, gastrocnemius area, which will stretch first. Then the hamstrings will stretch, and then we will ensure that our back spine remains as straight as possible. We go down, exhaling completely to bring both palms by the sides of the feet. अगर लगता है कि आपकी हथेलियां नहीं लग पा रही, you can definitely make use of a block. And while you get the block, try to make sure that you are allowing the lower area to stretch nicely. Let the blood flow to the brain. Let the blood have a flush of oxygen supply to the brain. Exhale. Patients of vertigo will definitely avoid this practice because इस पे उनको ट्रबल हो सकता है, तो वर्टिगो की कंडीशन में मना है। बाकी आप जब कर रहे होंगे इन चीजों का भी ध्यान दें। जिनको भी पेट के कॉन्ट्रैक्शन मना कर रखे हैं, मना किया है, जैसे मान लो ट्राइमेस्टर्स होता है या फिर पीरियड्स होते हैं या फिर ऑपरेशन, तो उस कंडीशन में मना है। बाकी सभी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सहेल डाउन। इंजेन्युअल हर्निया कंडीशन में भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहें तो अपने आप को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए दोनों हाथों को पीछे पकड़ के, शिन बोन्स की तरफ पकड़ के हेड को नीचे रेस्ट कराए। श्वास भरे, ब्रीद इन, एंड एज वी हाइपर बेंड वी हैव टू एक्सहेल। फिर से श्वास भरे, एक्सहेल। कुछ पल रहेंगे इसमें। बिल्कुल हल्का छोड़िए। Let there be no stress. It's just the inverted pose that we are doing right now, further with respect to the brain and the head. फिर से श्वास भरे गहरा। Now there should not be jerky movements. आराम से करना। Let me see. श्वास भरे गहरा। उस श्वास को भरते समय यही भाव हो कि हम छाती को बिल्कुल अच्छे से एक्सपांड करके श्वास ले रहे हैं। हाथों को जितना हो सके आप नजदीक रखना, कान से। So it's the chest which has to move, not this arms. Yes. Exhale as we go down. Exhale nicely. कुछ पल रहे उस पोजीशन में, कुछ पल रहे। एल्बो स्ट्रेट रहेगा ही, साथ ही हमारी जो पीछे के घुटने हैं वह भी स्ट्रेट रहेंगे। यस। फिर से श्वास भरे गहरा। Breathe in, Samasthiti, raising the arms above and then arch. So जब हम हाइपर बेंडिंग कर रहे हैं, हाइपर एक्सटेंशन कर रहे हैं, उस दौरान भी हमारा एक्सलेशन ही होता है। और वो ज्यादा अच्छे से अगर हम कर पाएंगे जब अगर मान लो हम एक्सहेल करें तो। ओके, कंटिन्यू। ब्रीद इन, एक्सहेल डाउन। Breathe in, breathe out. श्वास गहरा भरे and breathe out.
फिर से गहरा श्वास भरे। एंड लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। जो अब तक एक्सेल करते रहे ना, उसके बाद हम नेक्स्ट पोजीशन में जाएंगे। ओके फाइन। डियर मेंबर्स, वापस आइएगा। फ्रॉम द पादहस्तासन लेट अस कम बैक टू द पोजीशन ऑफ सिटिंग पोस्चर। सभी बैठेंगे इन द दंडासना स्थिति। दंडासन स्थिति में अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट अलाइन रखना। अब इस पोजीशन में दो चीजें हैं, ध्यान से समझना। सो वी हैव टू बी इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ allowing both palms to be brought on the ground। फुट दोनों हथेलियां जमीन पर प्लेस्ड रहेंगी। श्वास भरते हुए हमें अपने पूरे पंजे को जमीन पर ऐसे टिकाना है। उस दौरान जो अपनी नाभि है वो खींची जाएगी एंड अपना जो सिर है वो बिल्कुल पीछे की तरफ रहेगा और जो चेहरे का भाग है वो रूफटॉप से पैरेलल रहेगा। सो लेट अस एंश्योर दैट वी डू दिस प्रोसेस विद holding the posture for at least 20 seconds. The breathing process will be normal. अगर आपको हो सके तो आप होल्डिंग करना एंड देन इट विल बी मच इजियर। श्वास भरेंगे फिर से। slowly relaxing, let us be in this position for a while। नेहा जी, जो अब तक प्रेशर आता है तो शुड आई डू दिस? कहाँ पे प्रेशर आता है आपको? शोल्डर पे। शोल्डर पे प्रेशर आता है? शोल्डर पे प्रेशर आ रहा है तो छोड़ना मत। बस उस प्रेशर को आप शोल्डर से दूसरी जगह पर ट्राई करना कि आप अनुभव करें। द शोल्डर्स आर नॉट समथिंग विच आर टेकिंग मोर लोड, इट्स द wrists विच आर टेकिंग अप द लोड। तो हो सकता है कि आप का वो ध्यान उस जगह पर जाता है तो आप ज्यादा हैवीनेस फील करते हो। द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज जस्ट रोल योर शोल्डर्स फॉर अ व्हाइल। इनको बिल्कुल आप थोड़ा सा लूज करना एंड देन कंटिन्यू करेंगे। बाकी सभी कुछ समय इस पोजीशन में रहना और लेट अस जस्ट ब्रीथ एंड ब्रिंग द अवेयरनेस बैक टू द पोजीशन ऑफ दिस पोस्चर। अपने इस पोजीशन जिसमें हम दंडासन में हैं, बंद आंखों से देखेंगे खुद को। लेट अस विजुअलाइज आवरसेल्फ इन द विद द क्लोज्ड आईज, sitting idly, breathing nicely, with full, fresh oxygen coming inside and invigorating, energizing, recharging the cells within the body। फिर से गहरा श्वास भरे। गहरा प्रश्वास। Breathe in fully, breathe out completely। Breathe in fully, breathe out completely। Breathe in and let us get ready to now bring both hands forward। दोनों हाथों को सामने करें और अपने दोनों wrist points को रोटेट करेंगे। अपनी दोनों कलाइयों को रोटेट करें, आंखें बंद। जस्ट फोकस योर wrist with the closed eyes। मतलब बंद आंखों से एक पर्यवेक्षक की तरह, like an observer, let us look at both of the wrist points with the closed eyes, noticing the movement that it is causing at the wrist area। सांसों की गति सामान्य। Continue breathing in and now the other way round। And let us get ready to do it once again। श्वास भरे फिर से एक बार।
Sorry, slowly get down. Let us breathe normally. Exhale. फिर से गहरा सांस भरे. फिर से गहरा सांस भरे. And let us turn both hands to one side. दोनों हथेलियां, मतलब जो बायां हाथ है वो पीछे रहेगा, अपनी कमर से पीछे, कि just behind our spine, back spine. And let us allow the position of placing the other hand also in line with it. So we will lift our right hip. अगर हम left side जा रहे हैं, so the right hip will be lifted and we will try to allow the nose to the floor, nose and the forehead on the ground. Let us hold the position of twist for some time. फिर से श्वास भरे. Exhale, turn. फिर से श्वास भरे. Exhale, turn. फिर से श्वास भरे. Exhale, turn. Inhale and release. Let us get ready to do a very beautiful technique which will help us to improve our concentration and the brain level awareness. दाहिने पंजे को बाईं जंघा पर रखेंगे. ओके, और जिसे यह टफ लग रहा हो वो अपने दाहिने हील को अपनी बाईं जंघा पर रखेंगे एंड बाएं हील को दाहिने पर. सो वो हो गया पद्मासन. बट अगर पद्मासन आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले अर्ध पद्मासन भरे करना. सो द अर्ध पद्मासन इज वेयर we put it down. So this is the Ardha Padmasana. But the proper Padmasana is when we actually allow this point, the heel, to come above. Okay, ऊपर. ठीक है. तो वो कैसा होगा? पोजीशन कुछ ऐसा होगा कि अपने जो दोनों पंजे हैं वो अपनी तरफ रहेंगे और जो घुटने हैं वो जमीन पर. ट्राई करेंगे कि हम वो रहे. ओके, दिस इज द पोजीशन. ट्राई करना कि आपके दोनों पंजे अच्छे से फिक्स्ड रहे. अगर पहली बार कर रहे हैं तो अर्ध पद्मासन पहले करना. नाउ इन दिस पोजीशन लेट अस अलाउ द रिंग फिंगर टू बी प्रेस्ड. ओके, ये जो रिंग फिंगर है ना, जिसे रात को नींद नहीं आती है, बहुत ही डिस्टर्ब्ड स्लीप जिससे समस्या होता है, डिस्टर्ब स्लीप की समस्या जिसको होती है, दे हैव टू बी प्रेसिंग दिस पॉइंट फ्रीक्वेंटली. सोते समय कोई आपका प्रेस करे या फिर आप प्रेस करो, यू विल इंस्टेंटली फाइंड टू गेट इनटू द स्लीपिंग पोजीशन विदिन 10 मिनट्स. उससे भी कम कोई, बट आप मत करना, भले किसी और को करने को कहना. सो दिस इज हाउ यू हैव टू बी प्रेसिंग. फॉर नाउ वी आर जस्ट प्रेसिंग दिस पॉइंट विद द मुद्रा. आंखें बंद करें. श्वास गहरा भरें. This point is known to stimulate our parasympathetic system. Let us breathe and breathe out. Breathe in and let us visualize blue color sky in front of us. अपनी आंखों के समक्ष नीला रंग का आसमान, खुला आसमान देखेंगे. Let us visualize beautiful blue sky, crystal clear sky in front of us. Let us breathe, noticing beautiful black colored small birds chirping and flying away, flying in the sky. There we see sun is showering its rays. The light, subtle rays of sun are getting absorbed by the bare skin of our body
श्वास गहरा भरे। आप अनुभव कर पा रहे हैं that the fresh air is invigorating, energizing the body internally. Let us allow the forehead to be calm, peaceful, and poised. Let there be complete silence to understand and to listen to the inner voice. कुछ समय के लिए हम सभी मौन हो जाएंगे, बस अपनी अंतर की ध्वनि को सुनने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करेंगे श्वासों की ध्वनि को सुनने में। ओके, सो लेट अस ऑल लिसन टू द वॉइस ऑफ द ब्रेथ विच वी आर एबल टू हियर एवरी टाइम वी ब्रीथ। अगर पद्मासन में डिफिकल्टी होती है, सुखासन में बैठ जाइएगा, बट डेफिनेटली इस चीज का भी ध्यान रखना कि हर एक आसन जो होता है उसमें शुरुआत में दर्द होता है, बट वो पेनलेस का जर्नी, पेनफुल टू पेनलेस का जर्नी जो है वह यहीं से गुजरेगा। सो थोड़ा बहुत अगर हम अपने आप को कसते हैं, डिसिप्लिन में लाते हैं, इट कैन help us reap more benefits in the coming time. Let us breathe nicely. Breathe out. Breathe in. अनुभव करें हर श्वास के साथ छाती हमारी फूल रही है. So the chest is expanding with every breath. With every breath, the chambers of the lungs are expanding with pure, fresh oxygen. अनुभव करें कि श्वसन के माध्यम से शरीर का रोम रोम खिल रहा है. हर प्रश्वास के साथ हमारे अंदर की जो बुराई है, जो नेगेटिविटी है, वह योगाग्नि के माध्यम से भस्म हो रही है. हमारे अंदर हल्कापन का भाव अनुभव करेंगे. उस हल्केपन के भाव के साथ अनुभव करें हर श्वास के साथ प्राण ऊर्जा शरीर की बढ़ रही है. The pranic energy which is known to sustain the life is thereby getting energized with this process of pranayam. अनुभव करें हर श्वास हमारे मस्तिष्क के सभी तंतुओं को पोषित कर रहा है. Every breath that we take is invigorating, energizing the cells of the brain. Let us get ready to now do the process of involving the right hand thumb to be pressed. Okay, close the right nostril, inhale, allow the last two fingers to be holding the position of Vishnu Mudra. श्वास भरेंगे बाई नासिका से. Breathe in nicely through the left, breathe out through right. Breathe in through right, breathe out through left.
Breathe in through left. Breathe out through right. Continue. अनुभव करें कि ये दो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमें भगवान ने दिए हुए हैं उसका हम पूरा पूरा फायदा, पूरा बेनिफिट लेंगे ताकि हमें किसी और आर्टिफिशियल सिलेंडर्स की जरूरत ना पड़े इन फ्यूचर. Let us utilize this auspicious time to make sure that the brain gets more stronger, the cells gets more stronger. बहुत बार जब हमारी तंतुएं जो है, जो छोटे छोटे नर्व्स हैं, उनके अंदर की क्षमता कमकुवत होती है, तभी हम हेडेक, सिर दर्द के शिकार हो जाते हैं. Why? Because when the brain cannot handle the pressure that it has been put over, it starts revolting. And that's why we find that sometimes because of the allergy, some stimulant triggers the brain cells to get into the mode of headache. So we will ensure that we will get rid of this particular term from the brain and thereby invigorate the cells to into a more energized state of mind. Continue breathing in and breathing out. Continue breathing in and breathing out. Continue. Continue. हमारी श्वसन की प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए या फिर कोई एक स्लीपनेस का भाव ना आए या फिर नींद ना आए, या यूं कहे तो हम हमेशा वो एक एक्टिव मोड में रहे, इस भाव के साथ एक बहुत ही सुंदर सा मंत्र मैं आपको देना चाहती हूँ, जो आप मन ही मन गुनगुना सकते हैं ड्यूरिंग द एवरी प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग दैट वी डू. ओके, बहुत सुंदर है, बहुत सिंपल है, बस उसका टोन अलग बनाया है. ओके, सुनना. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. So every time we breathe, we have to allow this mantra to get chanted non-verbally. Okay, हम भले वाचिक रूप से ना गाएं, but मानसिक रूप से इसका मनन होता रहे. So that will make sure that we are keeping our mind alert while the process of breathing is being done. Okay. दूसरी साइड से दूसरे हाथ से करेंगे. अगर एक हाथ से थक गए दूसरे हाथ से कर लो, बट करना अनिवार्य है.
करते रहे। माधवी जी क्या हुआ? करो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। करते रहे। Very nice. Let us get ready. So now involve the process of next abhyas. आइए अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, आंखें खोल सकते हैं धीरे धीमे से, एंड लेट अस लिसन टू दिस नाइस ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। सो जिस प्रकार से हमारे शरीर में हर एक प्रैक्टिस का प्रभाव पड़ता है, सो द प्रैक्टिस दैट वी आर गोइंग टू डू इज कपालभाति क्रिया, विच इज टू बी डन व्हेन यू आर नॉट इन द हेडेक मोड। मतलब सिर दर्द नहीं है उस दौरान कर सकते हैं, ये आपको फ्यूचर में कभी नहीं देगा सिर दर्द। यू कहें तो अपने मस्तिष्क के तंतुओं को स्ट्रांग बनाएगा। कपालभाति का मकसद ही यही है कि अपने फोरहेड में शाइनिंग लाना। ओके, सो लेट अस डू इट विद द प्रोसेस ऑफ 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। ठीक है, अब जिसे मान लो अगर हाइपरटेंशन का एक्टिव कंडीशन है, केस है, तो वो स्लो करेगा, धीमे करेगा। सो दैट्स 2 सेकेंड 1 स्ट्रोक। ओके, इन सच केस वो बहुत ही स्लो होगा। अदर्स कैन अकम्पनी मी where we do the process of कपालभाति क्रिया। सेम प्रोसेस, वही पॉइंट को हम प्रेस करेंगे। उस पॉइंट को प्रेस करते समय हमारा हर एक जो प्रश्वास होगा, every time we exhale we are going to press this point. Okay, so let's do it. Which point could you please repeat? Ring finger, top of the ring finger. Continue.
ऑलराइट, पानी पी लीजिएगा अगर आपको जरूरत लगती है तो। ऐसे यूजुअली कपालभाति के बाद प्यास लगती है, द थ्रोट गेट्स ड्राइड अप, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, इन केस अगर बहुत सिर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, दर्द करने लगता है, तो उस कंडीशन में ये एक संकेत है, इट्स एन इंडिकेशन दैट वी शुड बी गेटिंग आवरसेल्फ हाइड्रेटेड टाइमली। आफ्टर एवरी हाफ एन आवर चेक ऑन द वाटर लेवल, मतलब आपको लगता है प्यास लग रही है तो पानी पी लीजिए, because that is what is going to keep the brain in floating in a good condition. Fine. Let us go for the Brahmari Pranayam. अपने दोनों अंगूठों को प्रेस करते हुए, पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद करते हुए, मकार का नाद करते हुए आइए हम सभी भ्रामरी करेंगे। ओके, so the pressure points to be pressed is that this part, अगर आप देखना चाहे तो देख लीजिएगा, this part here and the smallest, this is what is getting pressed। और अपना जो कान का this ढक्कन जैसा होता है ना, उसको बंद करना होता है। yes, okay, so can I remove this? Let's do it। Let us get ready to allow the position of joining both palms together. Let us take a deep, long, strong breath in, and we are going to experience the process of reverberating the heart center. It is said that we are आप चाहे तो अपने पैर को अभी वो करो, मतलब नॉर्मल सुखासन में ले जाओ, या फिर इंटरचेंज करना, जो मान लो अगर पोजिशन को पहले ना स्ट्रेट करो, लेट योर लेग्स बी ओपन, लेट मी गो बिहाइंड, पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़े, रिलैक्स, यस, रिलैक्स, लेट द टोज गो इन एंड आउट, रोटेट करें the other way round, allow the toes to go inside and outside, and let us finally turn both the knees to one side, then to the other side, one side to the other side, and finally sit comfortably in Sukhasana. अब ध्यान से समझना, कहते हैं नासा ही शीर्षो द्वारम, माने नासिका से ही हमारे सिर तक का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सो हम नाक से जो लेते हैं वो डायरेक्ट ब्रेन लेवल में पहुंच जाता है, और हमारे अंदर वो जो हम चाहते हैं स्टिमुलेट करना ब्रेन सेल्स को, वो होने लगता है। सो दैट्स व्हाई इन आयुर्वेदा देयर इज अ टेक्निक ऑफ स्टिमुलेटिंग द ब्रेन सेल्स विद द नस्य क्रिया। ओके, तो नस्य क्रिया या तो आप बादाम तेल का यूज करके कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत ही सीवियर अर्धशीशी का प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में ज्योतिषमती का तेल। ओके, तो यहाँ पे हमारे वेलनेस में भी नस्य ज्योतिषमती का स्पेशली दिया जाता है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर दोज हु आर हैविंग सीवियर ब्रेन ट्रिगरिंग प्रॉब्लम। ओके, तो इस अभ्यास को हम इस पर्सपेक्टिव में समझे कि रात को सोने से पहले बादाम रोगन तेल आप डाल सकते हैं, 2-2 बूंदे,
घर पे अगर करना है तो बादाम रोगन बेस्ट है। वो जलता भी नहीं और बहुत ही अच्छा फीलिंग लाने वाला अभ्यास होता है। So let us now finally do the process of the concluding practice, which will help us understand the entire circuitry of the facial muscles. दोनों हथेलियों के sinus points को press करें. These are the sinus points. Okay. So these are the special sinus points which we are going to press now. Press it nicely. Okay. Now close your eye, both the nostrils. ध्यान से देखना पहले. Close the nostril. Inhale through the mouth. हवा गालों में भरनी है यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक, जो आपको लगता है ना आई बैग्स अगर जम जाते हैं किसी किसी के, some people might face this issue of eye bags, वहां तक हवा भरनी है। यहाँ टेम्पल एरिया में भी हवा भरनी है, जॉ लाइन में भी हवा भरनी है, अपने चिन एरिया में भी हवा भर के कुछ समय होल्ड रहना है। इस प्रोसेस में जब हम होल्ड कर रहे होते हैं उस दौरान you will feel that the inner cells are getting more red or more fuller of the blood happening, moving inside the facial muscles. इस अभ्यास के दौरान होल्ड करेंगे कुछ समय 20 seconds, after which we will allow the chin to come to the throat pit and we'll hold. And then finally, when we are in the mode of exhalation, we'll bring the chin back to the position, exhale through the left nostril. हमारे स्वर योग के अनुसार जो बाई नासिका है वो ईड़ा नाड़ी से रिजेंबल कर, मतलब ईड़ा नाड़ी से उसका कनेक्शन है, और दाहिनी नासिका पिंगला नाड़ी से। ईड़ा नाड़ी is more of a cooling agent. It is more of stimulating the parasympathetic system, while the right one is associated with the sympathetic one. Let's do it together. Kapola Shakti Vikasa Kriya. Slowly exhale through the left, thereby allowing the oxygen. No, it's not really the oxygen, but the carbon dioxide getting out from the left nostril and realigning ourselves back to the neutral position. So, इस अभ्यास के दौरान you will find that the cheeks have become charged up. Okay, इस अभ्यास को फिर से करेंगे। कपोल माने गाल, और इन गालों में हमें हवा भरनी होती है। इस हवा भरने के दौरान जो होल्डिंग पीरियड रहेगा उस दौरान ना कुछ सोचना है, कुछ भी नहीं सोचेंगे, आप सोच भी नहीं पाओगे। उस दौरान बिल्कुल एक स्टिलनेस का अनुभव होगा, और हम जितना अपने आप को स्टिलनेस के अनुभव में रखते हैं उतना ही ब्रेन को रिलैक्सेशन भी मिलता है, और इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन इज अ गुड टेक्निक, बट दिस व्हाट वी आर डूइंग इज अ टाइप ऑफ अ क्रिया। लेट्स डू इट टुगेदर। श्वास भरे फिर से। नेहा मैम, नाक बंद कर मुंह से श्वास लेने का। जी बिल्कुल। Exhale slowly through the left. Bring the head to the normal position. कुछ समय मौन रहे, आंखें बंद ही रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार राज स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्लोज योर नॉस्ट्रल्स, इनहेल थ्रू द माउथ,
लेट अस कीप द palms pressed. आंखें बंद ही रहेंगे. श्वास गहरा भरे. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Continue breathing in. Continue. प्रार्थना मंत्र के बाद अब हम करने वाले हैं शांति पाठ. प्रभु तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू. तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू. तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान. सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान. तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया. ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला. दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. धियो यो नः प्रचोदयात्. धियो यो नः प्रचोदयात्. अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना. ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्सुव यद्भद्रं तन्न आस्सुव. तो जो भद्र है वो हमारे अंदर धारण हो, जो शुभ्र है, जो सत्य है, वो हमारे अंदर अवतरित हो. इस भाव के साथ आइए हम सभी दोनों हथेलियों को घर्षण करें. And let us place them over the eyes. You will slowly open. Wishing everybody a beautiful, energetic Tuesday. Thank you so much. Namaste. अच्छा, एक क्वेश्चन मैम. आप सभी से. थैंक यू नेहा मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू. धन्यवाद नेहा जी. थैंक यू. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछती हूँ. आप थैंक यू. सत्यमेव जयते हम सभी ने सुना होगा, राइट? एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. फ्रॉम वेयर इज द सोर्स ऑफ इट? कहाँ से ये लिया है? नहीं ज्योति जी, नहीं, रुकिए, थोड़ा सा रुकिए. लेट अदर्स आंसर. सत्यमेव जयते सुना? हाँ, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं सुना. नेशनल सिंबल के ऊपर है वो लायन या कुछ जो है.
कौन से स्क्रिप्चर से लिया है? एम्ब्लम, नेशनल एम्ब्लम। नो, व्हाट इज नेशनल एम्ब्लम? मुंडक उपनिषद। हु सेड दिस? नहीं, अशोक स्तंभ से। किसने बोला? मैंने नहीं बोला। मुंडक उपनिषद। मुंडक बोला था। हाँ अंकिता जी, यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इट्स ट्रू। और मुझे लगता है शायद ज्योति जी का भी यही आंसर रहा होगा, है ना? रश्मि शर्मा आल्सो। करेक्ट, इट्स मुंडक उपनिषद। हाँ, यस रश्मि मैम, क्या कहा? I also answered the same. यू ऑल्सो आंसर्ड, ओके, बहुत अच्छे। तब तो फिर बहुत अच्छे से आप गहन रुचि रखते हैं। यस, मोस्ट ऑफ द श्लोकास सूत्रास आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स, जिसमें मुंडक उपनिषद से यह लिया गया था। ओके, तो ऐसा ही मैं कल भी पूछूंगी आपसे, बहुत ही सुंदर है, जो आपने शायद सुना होगा। सो विद दैट, थैंक यू सो मच। कंक्लूड करेंगे। फॉर एनी क्वेश्चन आप मैं ले लूंगी। यस, Thank you. Thank you, ma'am. नेहा जी, नेहा जी, I have a question. आपने आज जो माइग्रेन और ये प्रैक्टिस करवाया कि फॉर द हेडेक्स एंड थिंग्स लाइक दैट, तो जो हमारे वी आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर एंड लुकिंग एट द स्क्रीन, उसके कारण भी आंखों पे प्रेशर करके यू गेट अ काइंड ऑफ अ हेडेक, like heaviness around the upper eyelids. So उसके लिए sometimes to get relief for the eyes, what is your suggestion? Yes, I'll get it something. जो मेरे पास टोटका है उसको मैं लेके ही आती हूँ। त्रिफला चूर्ण, okay. Okay. So there are two. There is this eye wash cup which comes. Okay, तो आपको 30 रुपए में मिल जाएगा. You will get it in the वैसे तो योगा स्टोर्स में मिल जाता है, पर अगर आपके नजदीक ना हो तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिएगा. You will get this along with the eye mask. Let me show that as well. ऑनलाइन अगर आप लेते हैं तो वो आपको आई मास्क भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा टेक्निक है टू गेट रिलीफ फ्रॉम द स्क्रीन टाइम ओवर यूज. तो आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कॉजिंग हेडेक. ज्यादा फोन एंड मोबाइल यूजेज के कारण उसका डायरेक्ट, बिकॉज द प्रेशर इज बीइंग कंटिन्यूअसली टेकन अप बाय द ब्रेन सेल्स ऑल्सो, so that takes up the toll and they start triggering the brain cells that cause the headache. तो यह एक टेक्निक है जिसमें आप कुछ समय के लिए आंखों को रेस्ट दे सकते हैं. सोना भी नहीं है, we just have to put it over your eyes and then you can rest yourself in the sitting position also, breathing nicely normally. ये जो ग्रीन कलर है ये आंखों के लिए भी अच्छा होता है. अगर हम हर एक कलर का ऑर्गन से कोरिलेट करते हैं तो green color is actually soothing, and along with that यह cup, eye wash cup जो है, you can either put water inside it, plain water inside it, और जो एक proper इफेक्ट लाना चाहते हैं वो गुलाब जल यूज कर सकते हैं. गुलाब जल आपने पोर किया, you can just have to allow the water to go above to get sucked inside the inner areas of the eye, iris and whatever. उसका कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं है, but बल्कि you will get more fresh feel after using it. There is another way to make your eyes feel more energized, that is with the use of Triphala. Okay, तो रात को अगर आपने हाफ अ चम्मच त्रिफला का पाउडर पानी में, जैसे मान लो हाफ चम्मच यूज किया है तो 20 ml के करीब पानी लेना, एंड देन उसको रात में सोख करके रखना, सुबह छानना है, फिर उस पानी को आपने इसमें पोर करके यू हैव टू यूज योर आईज टू फील दैट वाटर. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने छानना प्रॉपर होगा. ओके, सो अगर फिल्टर अच्छे से कर लिया, छान लिया अच्छे से छलनी से, उसके बाद आप यूज करना, यू विल फाइंड दैट
इट विल इम्प्रूव द आई स्ट्रेंथ, आई सेल स्ट्रेंथ। और साथ ही साथ अगर हम यह अपने बैग में कैरी करते हैं तो आप कहीं पे भी नॉर्मल पानी डाल के भी अगर यूज करेंगे, यू विल फाइंड मोर फ्रेश इफेक्ट्स। एंड एटलीस्ट आंखों की वजह से जो हेडेक प्रॉब्लम होती है वह तो नहीं होगा। बाकी तो योगाभ्यास करेंगे तो अपनी ब्रेन सेल्स तो स्ट्रांग बनेंगे ही, तो दर्द नहीं होगा कभी। हमारे अंदर वो क्षमता बढ़ेगी, मस्तिष्क के तंतुओं की क्षमता बढ़ेगी कि वो बड़े से बड़े ट्रिगर्स और द स्ट्रेसेस को भी झेल ले। Wonderful. Thank you so much. Thank you so much. नेहा, आई हैव अ क्वेश्चन। जिनको रेटिना में होल है वो लोग ये आई कप यूज कर सकते हैं वाटर से या उससे? आप पानी से धोते हो ना आंखें? हाँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वाटर विच इज गोज अबाउट। ओके, श्योर, थैंक यू। डन। मैम, आप जो शुरू में हवन के लिए मेधाष्टि नाम बताएंगे एक बार? मेधेष्टि, यस, मेधेष्टि। मेधाष्टि, उसको कैसे हाँ, यूज करना है? बताती हूँ, एक मिनट। अभी ये तो मेरे पास वातेष्टि है, उसी प्रकार आपको मेधेष्टि मिलेगी। इस पूरे इसमें जो भी होगा सामग्री वह अपने बड़े से बर्तन में डालना है, और उस बड़े से बर्तन में गूगल भी डालना। वेयर इज द गूगल? हाँ, ये गूगल का पूरा पैकेट इमर्स करना, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद फिर तिल का तेल, pour it inside, shake it properly and make this ingredient ready. So every time you use the samidha, so जो अपनी गोमय का या फिर गोबर के उपले जो होते हैं, या तो उपला यूज करो या फिर ऐसे कंडे आते हैं, पतंजलि से मिल जाएंगे आपको, तो वो आप यूज कर सकते हो। एंड देन एवरी टाइम जब आप हवन करें उस टाइम पे घी और कपूर, इनका भी यूज करना। दैट्स ऑल। ओके, सो दैट वुड कंप्लीट द प्रोसेस। तो थोड़ा बहुत अगर हमें लगता है तो हमें, सो द fumes that come will be medicated fumes, and it will not be the mere ash which is being produced. The process, इसको बस ऐसे ही समझ लीजिएगा कि हवन में हम जो डालते हैं वो दुगना या फिर तिगना होके हमें मिलता है। तो यह जो मेडिकेटेड एलिमेंट्स हम डाल रहे हैं उसका फ्यूम्स जब हम इनहेल कर रहे हैं उसका बेनिफिट भी एरोमा थेरेपी से कहो या फिर इनहेलेशन के माध्यम से हमें मिल रहा होता है। नासा ही शीर्षो द्वारम इज अगेन बीन प्रूव्ड, राइट? तो नासिका से जो हम ले रहे हैं मेडिसिन जो हम ले रहे हैं नाक से, उसका भी अपना प्रभाव पड़ रहा होता है। सो डेफिनेटली इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, यस। लाइट करने के बाद में ये सब सामग्री के जैसे थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है या टुगेदर? हाँ, मतलब जैसे आपने शुरुआत, मैंने लास्ट टाइम बताया तो था आपको, पहले डालना होता है कपूर डाल के फिर लाइट करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं घी से थोड़ा डालना, समिधा डालते हैं, फिर घी से भी हवन करते हैं। तो वो चलता रहता है प्रोसेस बीच बीच में, मैं भी करती रहती हूँ। सब कुछ एक साथ में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। थैंक यू। यस यस, नेहा जी। ठीक है, हाँ जी। हाँ, ये त्रिफला चूर्ण की बात जो कर रहे हैं आप, आंखों में डालने का, जब मतलब उसका पानी जो आंख में पाउच लगा के डालते हैं, उसमें आंख खुला रखता है या बंद बंद रखना पड़ता है? खुला रखना पड़ेगा, आंखों को बंद ओपन बंद करना पड़ेगा, खुला बंद, तभी तो वो अंदर जाएगा ना। बंद करके क्या ही मिलेगा? ब्लिंक करना है। हाँ, ब्लिंक करना है, यस करेक्ट, यू हैव टू ब्लिंक योर आईज। And that too, if you do it like this, you won't get that feel. You have to take it up so that the water goes inside. करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। Yes.
और नेहा मैम ये जो गुलाब जल आपने बोला था तो वो डाइल्यूट करना है या प्योर गुलाब जल? नो 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 नो, गुलाब जल कहाँ से, गुलाबरी वाला मत लेना, फेस चेहरे पर लगाने वाला गुलाब जल नहीं, आंखों के लिए जो होता है, या फिर यूं कहे तो नॉर्मल पतंजलि का भी जो है दैट यू कैन यूज, और जो होममेड अगर आप बनाना चाहो, कोई पतंजलि डाइल्यूट वगैरह करने, हाँ को पतंजलि डाइल्यूट का यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट। यस यस, डायरेक्ट, नो डाइल्यूशन। ओके। एंड एक और चीज मैम, ये अभी आपने अलग अलग बोला, ये मेधेष्टि वातेष्टि, तो ये कौन सा वाला यूज करना चाहिए या कैसे, मतलब? अपनी अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी अपनी जरूरत के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। जिनको कफ संबंधी प्रॉब्लम है वो कफिष्ट यूज करे, जो वात संबंधी प्रॉब्लम है वो वातिष्ट यूज करे, जिनको पित्त संबंधी प्रॉब्लम है वो पित्तेष्ट यूज करे, जिनको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज है वो मेधेष्ट यूज करे, जिनको कैंसर संबंधी प्रॉब्लम है वो कर्कटेष्ट यूज करे, जिनको ऐसा लगता है कि घर में भूत बाधा, नेगेटिव एनर्जीज का वास हो रहा है तो प्रारब्धेष्ट यूज करे, जिनको रेस्पिरेटरी संबंधी प्रॉब्लम है वो प्राणेष्ट यूज करे। तो ऐसे अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग और प्लांट्स को ड्राई करके उसका बनाया जाता है सामग्री, तो वो यूज कर सकते हैं। धूम चिकित्सा कहते हैं इसको, जिसको अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, धूम चिकित्सा होता है। यस, ठीक है, थैंक यू डन, मैम। यस यस, ठीक है। मैम तो मेरा एक कंक्लूड फॉर क्वेश्चन है टुडे। गरिमा। यस, मुझे पूछना था, कपोल शक्ति विकास क्रिया में हम जलंधर बंद लगाते हैं, हम मूल बंद और उद्यान बंद भी लगा सकते हैं उसमें? हाँ आपकी मर्जी है, अच्छा, इट्स अप टू यू। थैंक यू। यस, थैंक यू, बाय बाय।